जी भाषण दस नौ भाषण सर 186 सर 186 अंडरेज ना 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 186 अंडरेज क्या के 186 अंडरेज हैं लोग रियासी डिवीजन दे तो सर पहले अपने मसले करो सर सारा मसला है 186 लोग पहला मसला हा कि साडी नौकरी कोल लगी और गाड़ दे से इन्ना सकदा तो से आखा साडी चिट्ठी इन्ने के नहीं जिवें दो चिट्ठियां आज भेजे ਅਸੀਂ करते सर बहुत चिट्ठियां ਦਿੱਤੀਆਂ जनाब चिट्ठियां ਦਿੱਤੀਆਂ जनाब रेण जनाब जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨੇ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ ਰਿਆਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ 186 ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ 186 ਅੰਡਰ ਬਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਸਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰੇ ਨੀਡ ਬੇਸ ਦਾ ਦਿਓ ਨਾ ਨੀਡ ਬੇਸ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਡ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੀਡ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਟੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੀਡ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰ ਚੈੱਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡ ਬੇਸ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਭ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਆਸੇ ਗੱਲ ਆਖਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੁਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 186 ਗਲਤ ਹੈ 186 ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਦਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਸ਼ ਡੀਸੀ ਰਿਆਸੀ ਕੋਲ ਡੀਸੀ ਰਿਆਸੀ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸਰ 5 ਦਿਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਕਸੈਸ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕਲਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਅਸਾਂ ਮਾਨ ਰੱਖਾ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਓਪਨ ਕੁਸਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ सर सारा कोई बाई नेम एजुकेशन नहीं है सर सारा कुर्सी करने संवाद है सारी कुर्सी जवाब दे कुर्सी करने जवाब है सारा कि कुर्सी ने जवाब देना चाहिए सर जवाब ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਏਜ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇਣਾ ਅਬ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਆਏ ਜੇ ਸਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਫੀਸ ਕੇ पूरी कॉपी पे एक्शन साहब को सर ये रिकॉर्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੋਣਾ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਦਿਓ ਲਿਸਟ जनाब अस तुसे ही मंगा दे तुस असि ही हमारे पास सर जनाब की मंगा दे ते जनाब असि ही मंगा दे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਈ ਲੈਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਤਾ सर झूठ है ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਲ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ झूठ नहीं करो झूठ झूठ नहीं करना मैं तुसे सुनाया कि नीड बेस कैसी गल करा जेके लोग नीड बेस हैं तुसे कुछ नहीं लिखिया ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ तुसे कुछ नहीं लिखिया असे तुसे की रिक्वेस्ट भी की सर इंदे लोगों के बारे सोचो लिस्ट नहीं चाहिए 10 साल 15 साल 20 साल टर्म कितने लोग ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 15 साल 20 साल के किहड़े लोग हैं सर ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ SRO 520 इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए सर वो लोग अगर सर रिक्वेस्ट रियासी डिवीजन ने करने सर डिवीजन सारा है सर ਇਹਦੇ ਪੀਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ नहीं पॉलिसी ऊपर आके चल रहे रिकॉर्ड बनाए उन्हें स्किल्ड अनस्किल्ड हाई स्किल्ड सेमी स्किल्ड उन्हें 4 पेपर में पाइए भेजे SRO 520 सारा भेजे उन्हें सर ਨਾ ਗਲਤ ਕਰੀਏ सरकार सब कुछ करना चाहती लेकिन डिवीजन के अधिकारी कुछ नहीं करना चाहते डेली बेज का कतलेआम अगर करना चाहते हैं तो डिवीजन करा दें और सब डिवीजन करा दें सर अस क्या आख सकते हैं अगर सरकार आखा दी सर क्या करना ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਅੰਡਰ ਏਜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ सर बायोमेट्रिक डाटा कढाओ ना 21/12/2017 किन्ने लोग ऑनलाइन किते रेसी डिवीजन ने मैं डेटा सुनावा तुसें 21/12/2017 दा डाटा कढाओ किन्ने लोग ऑनलाइन किते थे सर चीफ इंजीनियर दी रिपोर्ट एससी साहब दी रिपोर्ट अलग एक्शन साहब दी रिपोर्ट अलग एडब्ल्यू साहब दी रिपोर्ट अपनी सर पता कुछ ही है मुलाजिम की पता ही नहीं मेरी डिप्टी कुत्ते अस आखने अगर 25 साल अस गिनती कर रहे हैं असें 25 साल होई 20 साल सर 20 साल नौकरी की 20 साल के बाद असें पता ही नहीं अपने कागज पत्र चिट्ठी का डिवीजन हमें आखदे असें पूछो थल्ले गल बंदे गल करे और कि एक्शन साहब से बात करो
एक्शन साहब भी पूछ रहे हैं, एक्शन साहब मेरे को स्टाफ नहीं है। सर स्टाफ हमने लाना है, आप मालिक हैं। जिन्हें तो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ जनाब जेका ऑनलाइन किता 1.25 लाख जम्मू कश्मीर दी एडमिनिस्ट्रेशन की मैसेज दिता कि 1.25 लाख लोग आए 60,000 आदमी था 1.25 लाख आया कुथों सारे डिपार्टमेंट सुनाओ ना सर 1.25 लाख कुथों आए ਥੋੜੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 100 ਲੱਖ मतलब सारे डिपार्टमेंट की गल करते अपने महकमे की गल करनी हर है। जगह 180 86 अंडरवेज कितने सर 520 ਚ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਲਾ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਣੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਲਾ ਅਗਰ ਅੰਡਰਵੇਜ ਹੋਗਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 520 ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ 180 ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਦਿਓ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ असल जनाब की डेट सुना भाई, डेट आप लोगों ने first appointment ऑनलाइन के लिए सारा पेरा तोड़े दा ਕੋਈ ਵੀ इल्जाम लाने का तो सबूत देना जनाब सबूत सारा डीसी रियासीपुर के पास भी और एक्शन साहब के पास भी पूरा कितना डाटा जवानी की देगा जवानी थोड़ा दिखता था कितने बड़ी लिस्ट डॉक्टर साहब भैया खाली तुझे फायदा कर दिया चेक कर दो तो अपने जैसे मार दो नहीं नहीं ये थोड़ी मंशा है, ये थोड़ी मंशा है डबली साहब, तुझे ना दो ये थोड़ी मंशा है, नहीं सारी मंशा नहीं है। देखो ना तो उसे नहीं बाय नेम करो ना बाय नेम दस की करनी अस आखने 21/12/2017 तुसे बायोमेट्रिक ऑनलाइन कराई और बायोमेट्रिक ऑनलाइन किने लोग होए ऐसी साहब दी रिपोर्ट गलत है या तुम्हारी रिपोर्ट गलत है गल खत्म है सानू डिटेल दियो तुस ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 98 ਲੱਗਿਆ ਖਰਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 2005 ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਫਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 2005 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਕੇਵੀ ਦੇ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਜੇ ਕਿ 2011 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਚ ਪਾਇਆ 2005 ਪਾਣਾ ਮਤਲਬ 2005 ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟ ਹੈ ਹਣ ਪੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਸਰ ਐਸਾ ਹੋਏਦਾ ਇੱਥੇ 1995 ਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਵੋਚਰ ਉਹਦੇ 2005 ਲੱਗੇ ਕਈ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ सन्याल दी लिस्ट करो 92 लिस्ट करो 93 दे किन्ने 94 दे किन्ने सरकार का सारी सरकार 200 साढ़े पास थोड़ी लिस्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास गिनती है गिनती ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ 1992 से लेकर 2017 तक आप देखो आपके पास कितने लोग लगे और कब कब लगे ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਸਟ ये आपने देखना है हमने थोड़ी देखना है लोग कैसे लगे हैं आपने लगाए हैं काम आपका है स्कीमें आपकी है सरकार आपकी है हम तो मजदूर हैं हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी बाकी फैसिलिटी सानू कुछ नहीं दियो पर कतलेआम दा ना कराओ डेली बेचने का कतलेआम होया गला बढ़दे मरी जंदे पेट कटिया नहीं जीने किते नहीं खगोने किते नहीं खड़ोने किते बड़ा जुल्म होया डबली साहब साढ़े कन्ने बहुत बड़ा जुल्म जेई दे चीफ इंजीनियर बनी है पढ़े दे दिन असल पर लोग लगे दे जिथे दिंदे रे बात उथे रे कुछ नहीं कीता कुछ भी ਸਰ 2000 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 2004 ਦੇ 9 ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ 94 ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ 16 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁੰਦੇ ਕਰਦਾ 2017 ਕਿੰਨੇ ਆਈ ਹੈ 16 ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੋਨੇ जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੋਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ उस डिपार्टमेंट ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਗਿਆ डिपार्टमेंट ਵਾਸ਼ੀ शबाश ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਬਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੇ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨੇ ਬਜਾਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਦਰ ਲੱਗੇ नहीं ये देखो ना ਥੋੜਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰੋ नहीं ये देखो ना जितना मेरी बात सुनो जमीन दी को गवर्नमेंट है उदे पर की नहीं जाएगा सारा हर पासे धोखा लाइए की करना पाए लाए रस लाइए पर ये हर चीज ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀਐਚਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣੇਦਾ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀਐਚਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਇਸ ਪੁੱਛਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਂਦਾ जनाब जाओ काम करो स्क्रीन पर आपने थोड़ा काम करना है उस ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਦਬਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਡਰੇਜ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਉਸੇ ਅਰਲੇ ਬਨਾੜੋ ਕੋਲ ਜੀ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫੌਜੀ ਆ ਕੱਢੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ 7 ਪੰਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਾਲੇਕੋਟ ਗਿਆ 60 ਪੰਡ ਦੇ इन्हें जमीन भी दी जमीन दी ओला जेई ने क्या कहा तो लिए थे इसलिए थोड़ा पता के लिखे थे लिखाया कोने ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ नहीं लिखाया कोने
आखिर लखाने वाले अफसर के बैठे थे ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ते क्या लिखे थे धोखा कोने कीता ਉਹਦੀ ਤਾਂ- इन्हें नहीं कीता ਧੋਖਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ने डिपार्टमेंट ने ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ जनाब जनाब मेरी 20 कनाल जमीन है तो खुश के मेरी ठीक है साढ़े 5 प्राइमरी से सारी होगी खुश के मेरी एक लाइन दी साढ़े प्यो ने लिखी है चलो पानी जरूर उन उत्थे दोबारा 2.5 इंच की पाइप दोबारा पई ठीक है 3 2 इंच की पई ओदी 3 इंच की क्या करनी अज 2.5 इंच की एक और पाइप सुटूड़ी आखले ने एक ही चेंज करानी है इन्हें करा किता कुने जेई धोखा कौन दिता जेई ने कि इन लाइन अस इस गड्डी ला रहे असीं कोई नौकरी इस गल्ला दित्ती उन्हें कि थोड़ा पानी चुक्या असीं दित्ते बिल्कुल असीं जेह्ड़ा लाया असीं की लाया मजबूर निकाल करने की क्योंकि इत्थे जरूरत है असीं कोई नहीं मतलब कुछ एम्बिशन पेइए मगर ते असीं नौकरियां लेदियां अगर लैना चाहते उसलै असीं परमानेंट होगी असीं इस चीज़ दा नाल लेना हाँ अज दे दौर दे विच उसलै बजुर्गें ठगी ठुगियां ते जेइये मतलब कर लिया कम्म लखाइए ते पानी लेई लिया अज तुस दसो कि अगर साढ़ी 20 कनाल जमीन की कीमत कौन देगी डिपार्टमेंट दिता इसकी भरपाई करदा 20 कनाल की जमीन दे विच कितना फसल होंदा 50 मन अदरक बेचदा असें आपू बेचदे ने निक्की निक्की जिस वेले पानी दिता उस बाद अज तक साड़ी जमीन खुश कर देनी अदरक चलो बिल्कुल ते मस्त तक फसल नहीं होंदा क्या बात करते तो सकते माड़ा असें धोखा नहीं दिता क्यों नहीं दिता धोखा सामने धोखा दिता बजुर्ग साढ़े को लिखाया कि पानी पलैना है चलो काम किया उत्थों तो लाइना और दुकान चुका होने जी ये इंजीनियर से लोग अंदर बैठे होते हैं साहब बैठे थे एनडब्ल्यू साहब बैठे थे लेकिन मोस्ट अगर पानी जाएगा दिता काम भी तो कहने की इस आए इतना जी दुनिया से ये उन्होंने तो पीएचई विभाग के डेली वेजर्स जो है आज पीएचई डिवीज़न रियासी के एक्सियन के कार्यालय में बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को उनके समक्ष रख रहे हैं। हमारे साथ जो इनके प्रधान हैं वो हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज पर्टिकुलर आज किस मुद्दे को लेकर आज एक्सियन के ऑफिस में आप बैठे हुए हैं और क्या मांगे उठा रहे हैं? रियासी अपडेट्स का बहुत बहुत स्वागत। एक्सियन साहब ने हमें आज के लिए बुलाया था। तो ये एक सप्ताह पहले बात हुई थी जब हम जहाँ से डीसी ऑफिस रियासी के लिए हमने चले थे, जहाँ से हमने एक डीसी रियासी के समक्ष बात रखनी थी, लेकिन किसी संजोग कारणवश मैं कहूँगा कि ये हमारे डेली वेजर का दुर्भाग्य रहा है कि एक डीसी रियासी हमारे चरणदीप साहब जो एक बहुत ही ईमानदार कर्मठ और एक युवा एक ऑफिसर्स हमारे रियासी हेडक्वार्टर के अंदर आए। मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, लेकिन किसी कारणवश से वहाँ पर हमें अंदर गेट के अंदर एंट्री नहीं होने दिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं। और आज की बात की जाए तो उसके बाद फिर ये तय हुआ था कि इन्होंने आपको बुलाया था, आमंत्रित किया था बैठक के लिए कि वहाँ पर नहीं मिलने दिया गया, आप इस कार्यालय में आइए और मिलिए, ये बात हुई थी या फिर अपनी मर्जी से आज आप आए? एक्सियन साहब ने हमें बाय टेलीफोन उसी दिन मुझे फ़ोन किया था और बाय टेलीफोन मुझे कहा था कि आप जैसे भी हैं, जो भी आपके मुद्दे हैं, जो भी आपकी बात है, हम बात बैठकर करेंगे। लेकिन जब हम आज जब हम इनके समक्ष में आए तो जहाँ का नज़रिया, जहाँ की बात और जहाँ की आक्रामकता जो है वो कुछ अलग तरह की दिखाई दे रही है। नारेबाजी भी की गई है, प्रदर्शन भी किया गया अंदर बैठ। देखिए, नारा है हमारा देश हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम, एम्प्लॉय भाई भाई। सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद हमारा उद्योग है और उसके बाद हम मजदूर हैं। लेकिन मैं बहुत ही एक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की पूरी मीडिया और रियासी मीडिया ने जिस तरीके से हमारे हर मुद्दे को सर अंजाम दिया है। और मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं लेकिन हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब क्या देखते हैं इस स्थिति की? अगर बात करें, इन दिनों की बात करें, आपका मुद्दा कहां तक पहुंचा है? यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो उम्मीद जगी थी अब पूरी होने जा रही है, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होने जा रहा है, परमानेंट होने पर प्रक्रिया क्या शुरू हुई है या जथा स्थिति है, पहले जैसी स्थिति भी अभी बनी हुई है, आपको कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है? सबसे पहले घरों की सफाई करेंगे, जहाँ जहाँ भी अपने अपने साथी हैं, जो हमारे रियासी में घर हैं, और इसको सफाई अभियान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का मिशन उठाया है, उसी को मद्देनज़र में रखते हुए हमने भी इस बीड़ा को उठाया है। आपको पता होगा कि आज से 3 साल पहले जब बायोमेट्रिक ऑनलाइन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी धांधली की गई है और रियासी डिवीज़न का 186 आदमी जो लड़के लगाए हैं वो उनको अंडरेज किया गया है। अंडरेज किया गया है, किन लोगों को बेनिफिट्स दिए गए? सवाल आपका ये है कि अंडर एज कर दिया गया है, वो
उनकी आयु उतनी नहीं थी जितनी बताई जा रही है, ये आप सवाल। बिल्कुल बायोमेट्रिक अगर हुई है, अगर जो लोग बायोमेट्रिक की बात करते हैं, सरकार बायोमेट्रिक की बात कर रही है, एलजी प्रशासन बायोमेट्रिक की बात कर रहा है, मैं डिवीजन एससी से पूछना चाहता हूं कि बायोमेट्रिक अगर आप लोगों ने की है तो बायोमेट्रिक के हिसाब से अगर हमारे 22 साल या 25 साल हुए हैं तो हमें SRO 520 में इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? मेरे रियासी डिवीजन का एक भी फाइल SRO 520 में इंप्लीमेंट नहीं की गई। PWD एजेंसी की बात करें, PWD के अंदर 58 लोग जो हैं वो SRO 520 में इंप्लीमेंट हुए हैं और उनको CA आज 57,000 रुपया मिला है। मैं कहना चाहता हूं अपने PH एक्सेट एससी से, हमारा घेराव करने का जो हम जहाँ कोई पथराव करने के लिए नहीं आए, जहाँ किसी को धमकी देने के लिए नहीं है, हमारी मांग है, हमारा DC हमारे घर के मुखिया हैं, हम बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारी बात का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। हमारी बात का उनको स्पष्टीकरण करना होगा। हमारे कटरा के AWS जहाँ पर बैठे हैं, हमारे रियासी के AWS साहब बैठे हैं, हम सभी जितने भी हैं उनके साथ बैठकर एक सलाह मशवरा करें। पर्टिकुलर क्या अंडर एज का ही मामला उठाया जा रहा है या कुछ और मामले भी उठाए जा रहे हैं? आज एक अंडर एज का मामला है, सबसे बड़ा अंडर एज का मामला है। और जो हमारे 4 लोग एक अपना 60 साल आयु सीमा देकर घरों में भेज दिए गए हैं और उनका 60 महीने का वेतन बकाया, उन लोगों को खाली हाथों में घर में भेजा। क्यों भेजा? उनको देना चाहिए था कुछ। अगर इनके पास पैसे थे, DDOs हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनके हाथ में पावर है। LG प्रशासन है, जहाँ पर सरकार नहीं है, चीफ मिनिस्टर की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, MLAs नहीं है, किसी को नहीं पूछना, ये खुद कर सकते हैं। इनके पास ऑटोमेटिक हथियार है, ये कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं दिए पैसे? अगर तीसरी बात हम करें तो तीसरी बात हमारी ये रही है कि जो हमारा पिछले महीने का जो वेतन आया है वो चीफ इंजीनियर साहब ने 28 दिन का दिया और हमारे एक्शन साहब ने 31 दिन का दिया। हाँ, पूछना चाहते हैं कि 5.5 लाख रुपये एक्शन साहब ने कहाँ से लाया, कहाँ से आए पैसे? हम तो कहते थे कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं आता है, तो वो 5.5 लाख रुपया कहाँ से आया? मैकेनिकल सेक्शन जो है वो 28 दिन का वेतन दे रहा है। हाँ, पूछना चाहते हैं, एक विभाग है, एक विभाग के 2 हिस्सेदारी की है। अगर एक विभाग को चलाने के लिए अगर आपने 3 इंजीनियर्स लगाए हैं तो उन इंजीनियर्स का हमें क्या फ़ायदा है? जो लोग 25 साल 20 साल 15 साल सेवा देंगे उनका आज तक रिकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है। आज कुछ लीडर ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि 1.25 लाख हो गया, कोई कहता है 60,000, कोई कहता है। मैं तो कहता हूँ कि घर में देखो, घर में है क्या, लेकिन जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरा ही अंधेरा पड़ा है। जिससे भी बात की जाए वो सिर्फ माथे पर हाथ रखकर खड़ा है, कहता है कि अभी एक्शन रियासी का क्या कहना था। और दविंदर सिंह जी ये भी जानना चाहेंगे कि होम मिनिस्टर जब यहाँ जम्मू में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है, तो क्या लागू हुआ है? आने वाले कुछ महीनों में आपको मिनिमम वेजेस के तहत, एक्ट के तहत ही वेजेस मिलेंगे? कुछ ऐसे संकेत आपको मिले हैं या अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है इसका? बिल्कुल हुआ है, जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है। आपको उसका फ़ायदा मिल पा रहा है अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, या नहीं मिल रहा है, या आने वाले दिनों में मिल सकता है? देखिए, इसके ऊपर में मैं एक डेलीगेशन बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से भी मिला था और उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट दे दिया है, बेसिस एक्ट दिया है। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम बेसिस एक्ट लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? फायदे कब मिलेंगे? कब देंगे? बाकी 370 हट गया, 35A हट गया, डेली वेजर हट गया, तो इनको पक्का कब करना है? इनको बेसिस कब देनी है? तो इन सभी इशू को हम देकर हम अपने डिवीजन से इस मुहिम को लेकर जा रहे हैं और इस मुहिम को चलाने में पूर्व की DC रियासी मैडम इंदु कंबल चिप जी ने इस मुहिम को 5 दिन में बात रखी थी और हमारे एक्शन साहब जेही मौजूद एक्शन, हमारे अकाउंट अफसर्स, हमारे क्लर्क्स सभी वहाँ पर बैठे थे उस बैठक में। अगर जो लोग 25 साल 30 साल दिए हैं, चीफ इंजीनियर पक्के नहीं करना है, पक्का हमारा डिवीजन करेगा, पक्का हमारा सब डिवीजन करेगा। जब ये लोग रिकॉर्ड तय करेंगे उसी रिकॉर्ड के हिसाब से काम होगा। ये लिखते कुछ नहीं है, रिकॉर्ड साफ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मेंटेन नहीं किया गया है या फिर मेंटेन है, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा? आप पूछिए एक्शन साहब से। SRO 520 में जहाँ की हमारी प्रशासन ने 2017 से लेकर 2020 तक, 2017 से 2019 तक अगर हम बात करें, जेई कागज फरोली करते रहे। हाँ भी SRO 5 में इतनी फाइल बन रही, इतनी फाइल बन रही है। भाई कैसे बन रही? कारण क्या है? अगर किसी फाइल में एलिगेशन है, अगर एक फाइल में है, 2 में है, आखिर गलती कहाँ हो रही है? इसका सुधार कैसे करना है? हमारे साहब कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। भाई स्टाफ हमने नहीं लाना है, वो DC साहब को देख रहे हैं कि मुझे अपना डिवीज़न कैसे चलाना है, वो DC साहब को देख रहे हैं कि मुझे अपना जिला इंतजामिया कैसे करना है। हमने थोड़ी करना है, हमारा काम है लोगों को पानी पिलाना। अगर पानी पिलाकर भी पैसे नहीं मिलते हैं तो ये मैं जम्मू कश्मीर का और जिला रियासी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा कि आज भी अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका साथ, आपका साथ लिया जा रहा है, आपसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा। हम प्रयास कर रहे हैं,
विकास नहीं हुआ है। विकास के लिए हम विश्वास के साथ प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है जब तक जीवित हैं तो इस प्रयास में हम जुटे रहेंगे। तो अभी जो 60 साल से अधिक आयु वाले जो लोगों को रिटायर किया गया है, सेवानिवृत्त, क्या उन्हें कर दिया गया है? और टोटल 4 लोग ही हैं, उन्हें क्या कुछ भी अब एक मुश्त जो राशि मिलती है परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, डेली वेजर्स को नहीं मिलेगी? क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? और कितने महीने का, आपने कहा कि 60 महीने का क्या उनका जो वेतन है वो पेंडिंग है, वो मांग आप कर रहे हैं उन्हें दिया जाए? देखिए, अगर एक हमारे इंजीनियर साहब किसी भी विभाग के हैं, अगर वो रिटायरमेंट 2022 में जा रहे हैं तो ये 2021 में दिसंबर के अंतिम में उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जनवरी से उसको लागू किया जाता है। मैं जो दुर्भाग्य कहूँगा कि डेली वेजरों का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और डेली वेजरों की जो एडमिनिस्ट्रेशन लोग रहे हैं मैं उनका भी दुर्भाग्य मानूंगा क्योंकि उन्होंने नेक नीति से काम नहीं किया है, जिसके लिए आज हमें दिन रात प्रयास करना पड़ रहा है। हमें जहाँ पर ठोकरें दर दर की खानी पड़ रही हैं, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि सरकार चाहे किसी भी रहेगी, एलजी प्रशासन जिस तरीके से हमारे पूर्व के गवर्नर महोदय सत्यपाल मलिक साहब ने काम किए थे, मैं चाहूँगा कि हमारे एलजी साहब इस तरीके से काम करें और ख़ास करके डीसी रियासी हमारे चरणदीप साहब हैं। मैं आपकी रियासी अपडेट से गुजारिश करूँगा कि रियासी के अंदर सबसे बड़ा पीएचई के अंदर स्कैम किया गया है। स्कैम ये हुआ है, ना रिकॉर्ड, ना चिट्ठी, ना पत्थर, ना वेतन। लोग सेवा देकर अपने घर में जा रहे हैं और उसी मुद्दे को लेकर मैं डीसी रियासी के पास गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर कवाड़ बंद कर दिए गए, वहाँ पर हमें नहीं जाने दिया। तो इसी को मद्देनजर में रखते हुए आज हमें जहाँ पर बुलाया गया था, ये अभी आपकी बैठक चल रही है, धरना है, प्रदर्शन है, जहाँ पर हम एक शांत जैसे सरोवर है, सरोवर की तरह हम जहाँ पर बैठे हैं, हम अपने एक्शन साहब से बात कर रहे हैं। अपने एक्शन साहब से हम उनके समक्ष एक मुद्दा रखें कि एक्शन साहब होश में आओ, होश में आओ। एक्शन साहब, नारेबाजी भी की गई। एक्शन साहब, आपके राज में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक्शन रियासी होश में नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर आप काम नहीं कर सकते प्लीज़ आप कुर्सी छोड़िए, आपको अधिकार नहीं है इस चेयर के ऊपर बैठने का। हमारी मांग है, अगर हम दोषी पाए जाते हैं, जिला इंतजामिया इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? आखिर कौन है इसका मालिक? आखिर हमारा कत्लेआम करने वाले कौन लोग हैं? अगर गला काट देते दुख नहीं था, पेट ही काट दिया। ना जीने के लिए रहे, ना मरने के लिए रहे। हम पूछना चाहते हैं, जहाँ की ब्यूरोक्रेसी, जो लोग IAS KS ऑफिसर्स कहते हैं कि लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के नाम लेने से, जिन्हें झिझक होती है डेली वेजरों की बात करने में, जिन्हें झिझक होती है डेली वेजरों का वेतन बांध देने में, जिन्हें बढ़ा हुआ वेतन नहीं दे सकते हैं, वो क्या देंगे? अब मिनिमम वेजेस कब मिलेंगी? कुछ आश्वासन आपको मिला है क्या? अगले महीने से, या 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद? कुछ आश्वासन जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं उनसे मिला है, या प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं, या जम्मू में आपके कोई नेता डेली वेजर्स अगर किसी से बड़े अधिकारी से मिले, उन्हें कोई आश्वासन मिला है कि आपको जो मिनिमम वेजेस एक्ट यूटी के तहत मिलना है वो कब मिलेगा? हम जम्मू के भी नेता हैं, रियासी के भी नेता हैं और भारत के भी नेता हैं। हम डेली वेजरों की बात खुद कर रहे हैं और हमने जे पिछले कई महीने से आश्वासन यही मिला है, जैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, वैसे ही रैना साहब ने कहा है, और एलजी प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और आपको क्या उम्मीद है, जल्दी मिलेगा मिनिमम वेजेस? छीन कर लेंगे, लड़ कर लेंगे और डट कर लेंगे। हम पीछे एक भी कदम जाने वाले नहीं हैं। चाहे कोई भी इस चेयर के ऊपर बैठेगा, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। अगर लोगों को पानी नहीं मिला, पानी की लोगों की शिकायतें हैं, हमारा कसूरवार नहीं है, इसके ऊपर भी सरकार को एक गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। आज जल जीवन मिशन आया है, जल जीवन मिशन के तहत में बहुत करोड़ों रुपए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि वो कहां पर लगने हैं, वो कहां पर लगेंगे? उन प्रोजेक्टों का पानी कौन कौन पीने वाला है और वो प्रोजेक्ट चलाने वाले कौन लोग होंगे? जिन लोगों ने पिछले 20-25 साल दिए हैं, सरकार उसके ऊपर भी अस्थिर नजर आई जी। ये अब कब तक आप ये जो बैठे हुए हैं धरना दे रही है, ये कब तक जारी रहेगा आपका? देखिए, धरना नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया है कि शांत सरोवर की तरह बैठे हैं, देश की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्र उद्योग की बात कर रहे हैं। अगर किसी को हमारी बात से पीड़ा है, हम जहाँ पर नहीं बैठेंगे, लेकिन हमने एक संदेश जो एक रियासी के नाम देना था, रियासी की जनता के नाम, रियासी की आवाम के नाम देना था, और जहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हैं उन्हें इसके ऊपर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। यही आपके भाई हैं, यही बच्चे हैं, यही आपके पानी पिलाने वाले लोग हैं। पानी किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं पिलाया। और एक्शन साहब से आप प्लीज़, मेरी एक राय है, मेरी एक मांग है कि जो मैंने शर्तें रखी हैं, जो मैंने बात रखी है, प्लीज़ आप एक्शन साहब से पूछिए। मुद्दा आपने कहा कि अंडर एज का मामला, दूसरा मामला आपने कहा कि 4 लोग रिटायर होकर जा रहे हैं या चले गए हैं, 4 लोग हैं, क्या उनके लिए क्या मांग आप कर रहे हैं? उनके लिए कम से कम 10 लाख रुपया
10-10 लाख रुपया एक एक कार्यक्रम को मिलना चाहिए। पहले हुआ है क्या कोई डेली वेजर रिटायर होकर गया और उसे एक मुश्त जो राशि है वो दी गई? पहले नहीं हुए हैं, जे आज हो रहे हैं। 4 महीने पहले हुए, प्रावधान है ऐसा? 4 महीने पहले हुए। जे हमारी आज की मांग नहीं है, जे हमारी पिछले 20 वर्षों की मांग रही है कि जो भी हमारा डेली बेसिस से रिटायरमेंट जा रहा है, जो डेली बेसिस काम के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई है उसके बच्चे को नौकरी दी जाए, डेली वेजर बतौर लगाया जाए। उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसकी बीबी कहाँ जाएगी? चलो बच्चे को आप नौकरी नहीं देंगे, बीबी को नौकरी दीजिए। अगर नौकरी नहीं दे सकते उसको मिनिमम 5 लाख रुपया दीजिए। आज के ज़माने की अगर बात करें, आज के समय की बात करें, मिनिमम कम से कम उसको 10 लाख रुपया सरकार को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर सरकार इसकी भरपाई नहीं करती है तो सरकार को वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो सरकार ना कभी सपने में सोचा होगा और ना कभी सोचने की नौबत करेगी। तो अब क्या 2 ही मुद्दों को लेकर आज जो आप यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है, जो लोग 186 जो हम बात कर रहे हैं, ये 2017 और मैडम इंदु कंवल चिब के समय का मुद्दा है और बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे को डीसी रियासी ने लिया था। और मुझे लगता है मैं 186 अंडर एज अच्छा बायोमेट्रिक ऑनलाइन 21/12/2017 में हुआ। लोग अंडर एज कैसे हुए? रियासी डिवीज़न ने बनाया है। रियासी डिवीज़न का सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे लोगों से 12 साल काम कर लिया, 15 साल, और आज उन लोगों का ये एक रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे। अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, किसने करना है? हमने नहीं करना है। हम पानी पिलाएंगे, वो लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी ड्यूटी जूनियर इंजीनियर्स की है। वो जूनियर इंजीनियर्स को देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन संजोगवश हमारे एक्शन साहब जहाँ पर बैठे हैं, एक्शन साहब को इसके ऊपर पूरी दरियादिली दिखानी चाहिए और मजदूरों के हित के लिए आगे आना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा आपकी मीडिया से कि आपको इस बात को एक्शन साहब से बड़ी ज़रूर करनी चाहिए और मैं डीसी रियासी से भी अनुरोध करूँगा कि इस मुद्दे को वो हल करवाएं, क्योंकि डेली वेजेस हैं, गरीब लोग लगे हैं, किसी का गला ना कटे। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक्सीएन के कार्यालय में ये तमाम जो डेली वेजर्स हैं, आप तस्वीरों में भी पीछे देख सकते हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है। नारेबाजी भी कुछ देर के लिए यहाँ पर की गई थी और अपनी मांगें जो है इनके समक्ष रखी जा रही हैं। मांगे साफ तौर पर आपको बता दें, अंडर एज का जो मामला है, कुछ लोगों को अंडर एज किया गया था, वो मामला उठाया जा रहा है। और इसके साथ ही कुछ लोग जो हैं सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो आयु है 60 से अधिक अब हो चुकी है, तो उन्हें सेवानिवृत्त किया जा चुका है। लेकिन उसके लिए ये डेली वेजर्स इकट्ठे होकर ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक मुश्त जो राशि है वो दी जाए। 5 लाख की भी मांग ये कर रहे हैं और इन लगातार और कुछ मुद्दे भी उठा रहे हैं। रिकॉर्ड्स की बात भी इनके द्वारा की जा रही है कि विभाग द्वारा इनका जो रिकॉर्ड है वो सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण डेली वेजर्स को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और मिनिमम वेजेस की जब हमने बात की तो इन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने जो कहा था, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया है। तो इसके साथ ही भाजपा के जो अन्य नेता हैं वो भी यही बात कर रहे हैं और ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जल्दी ही मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो ये उसके लिए लगातार जो संघर्ष इनका चलता आ रहा है वो आगे भी जारी रखेंगे। तो अंदर की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उधर आके 10 साल इन्हें अकेले मन लिया, इन्हें हमारी एरिया से ये 10 साल आगे ना 6 हमारी इनवारी बोलो काफी नहीं होना। अब तो है ना कोई गलत लगेगा, अंडर एज लगेगा, कोई सन बड़ी गलत है जेरे ऊपर तो है जिस मैं करना था भाई, मेरी बाइक चोरी हुई, मुझे बाइक का नंबर लगा था ना, नंबर नहीं पता है, वो भी जो लिखा था नहीं पता, फिर पता करिए आऊँ है बुरी है देखो ना। अपने कार्य तुमने आप मैं इंक्वायरी करूँगा इंडिया के बाहर से ऐसा नहीं करनी। ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਚੋ ਥੋੜਾ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਟੱਪਾ ਗਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਓ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ नहीं असली नहीं भाई वो मतलब लोग मैं आपसे कोई डॉक्टर प्यार में ना दे
तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद। अपने भी आओ, अपने घर है बंदे तो घर बाहर नहीं जनाब क्या करके? जनाब ये गए थे आज जरूर होते रहे नहीं भी नहीं बच्चा अपने घर कमरे ही मतलब आप ये कि रास्ता चलो अगर आप घर से चल रही का तुम्हें तो सारे बंदे प्यार पर आप ने आदमी